بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم تفسیر ابن کثیر ضیاء القرآن کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 33، 34، 33، 34۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کو اور عمران کے گھرانے کو سارے جہان والوں پر۔ یہ ایک نسل ہے، بعض ان میں سے بعض کی اولاد ہیں، اور اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تفسیر۔ ان اللہ اصطفیٰ، اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے کہ اس نے تمام اہل زمین میں سے ان چند گھرانوں اور خاندانوں کو چن لیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا، ان میں اپنی خاص روح پھونکی، فرشتوں سے سجدہ کرایا، تمام اشیاء کے ناموں اور ان کے حقائق سے آگاہ کیا، پھر جنت میں بسایا، پھر اپنی خاص حکمت کی وجہ سے وہاں سے زمین پر اتارا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اس وقت پہلا رسول بنا کر بھیجا اہل عرب کی طرف، جب لوگ بتوں کی پوجا کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگے تھے۔ پھر جب آپ ایک طویل مدت تک دن رات قوم کو اللہ تعالیٰ کی دعوت دیتے رہے، کبھی سرا اور کبھی اعلانیہ، کبھی سرن اور کبھی اعلانیہ، لیکن اس سے وہ دور ہوتے گئے، آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ تعالیٰ ان سب کو غرق کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو شرف قبولیت بخشا، اور صرف وہی چند لوگ بچے جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا دین قبول کیا تھا۔ اسی طرح آل ابراہیم کو بھی فضیلت عطا فرمائی، اور آپ کی آل سے ہی سید البشر خاتم النبیین کو بھی مبعوث فرمایا۔ اس جگہ عمران سے حضرت مریم علیہ السلام کے والد مراد ہیں۔ ابن اسحاق نے ان کا نسب نامہ اس طرح بیان کیا ہے: عمران بن یاشم بن امون بن میشا بن حزقیہ بن احریق بن ازار یا بن امسیہ بن ناؤش بن احزیو بن بھواب بن ناظم بن مقاصد بن اشیہ بن ایاز بن رقیم بن سلیمان بن داؤد۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ انشاءاللہ اس کا تفصیلی بیان سورہ انعام میں آئے گا۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 35 اور 36، 35، 36۔ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ ترجمہ۔ جب عرض کی عمران کی بیوی نے: اے میرے رب، میں نظر مانتی ہوں تیرے لیے جو میرے شکم میں ہے، سب کاموں سے آزاد کر کے سو قبول فرما لے یہ نذرانہ مجھ سے، بے شک تو ہی دعائیں سننے والا، نیتوں کو جاننے والا ہے۔ پھر جب اس نے جنا اسے تو حیرت و حسرت سے بولی: اے رب، میں نے تو جنم دیا ایک لڑکی کو، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو اس نے جنا، اور نہیں تھا لڑکا جس کا وہ سوال کرتی تھی مانند اس لڑکی کے۔ اور ماں نے کہا: میں نے نام رکھا ہے اس کا مریم، اور میں تیری پناہ میں دیتی ہوں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے۔ تفسیر۔ اذ قالت امرأۃ عمران، حضرت عمران کی زوجہ اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا نام حنا بنت فاقوس تھا۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن انہوں نے ایک پرندے کو دیکھا جو اپنے بچوں کو دانہ کھلا رہا تھا، اس پر ان کے دل میں بھی اولاد کی خواہش پیدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بچے کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو شرف قبولیت بخشا، اور اسی رات انہیں حمل ٹھہر گیا۔ جب انہیں حمل کا یقین ہو گیا تو انہوں نے نظر مانی کہ انہیں اللہ تعالیٰ جو بھی اولاد دے گا اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی: اے اللہ، میں نے تیرے لیے نظر مانی ہے کہ میرے شکم میں جو بچہ ہوگا اسے تمام امور سے آزاد کر کے بیت المقدس کی خدمت کے لیے مقرر کر دوں گی۔ اے باری تعالیٰ، میرے اس نذرانے کو قبول فرما لے، یقیناً تو ہی میری دعا کو سننے والا اور نیت کو جاننے والا ہے۔ اس وقت انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کے ہاں لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی، لیکن لڑکی پیدا ہوئی تو بڑی حیرت و حسرت سے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی: میں نے لڑکی کو جنم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اس نے کیا جنا ہے۔
वज़ाअत को वज़ाअतु भी पढ़ा गया है, यानी ये कौल हज़रत हिना वालदा मरियम का था, और वज़ास भी पढ़ा गया है। इसका मायने ये होगा कि अल्लाह ताला खूब जानता है कि उसने क्या जना है। फिर अर्ज़ की कि वो जिस लड़के का सवाल किया करती है, लड़की तो इस तरह नहीं है, यानी जिस तरह एक लड़का मस्जिद की खिदमत कर सकता है और ताकत और हिम्मत से अल्लाह ताला की इबादत कर सकता है, उस तरह लड़की नहीं कर सकती। व इन्नी सम्मय्तुहा मरियम, मैंने इसका नाम मरियम रखा। इससे साबित होता है कि जिस दिन बच्चा पैदा हो उसी दिन नाम रखना भी जायज़ है। जिस तरह की आयत करीमा के ज़ाहिरी सियाक से मालूम होता है, अगरचे ये हुक्म इस्लाम की शरीयत से पहले का है, चूँकि ये हमारी शरीयत के खिलाफ नहीं है, इसलिए इस पर अमल किया जा सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी यही साबित है कि जब आपके यहाँ बेटा पैदा हुआ तो आपने फरमाया, इस रात अल्लाह ताला ने मुझे बेटा अता फरमाया है और मैंने उसका नाम अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम पर इब्राहीम रखा है। इस तरह हज़रत अनस के भाई की पैदाइश हुई तो आप उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले गए। आपने उसे अपने दस्ते मुबारक से घुट्टी दी और उसका नाम अब्दुल्ला रखा। एक दफ़ा एक शख्स ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, इस रात अल्लाह ताला ने मुझे एक बेटा अता फरमाया है, इसका क्या नाम रखूं? आपने फरमाया, अपने बेटे का नाम अब्दुल रहमान रखो। हज़रत अबी असयद के यहाँ जब बेटा पैदा हुआ तो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुट्टी दिलाने के लिए आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए। आप किसी अहम मामले में मसरूफ़ थे, इसलिए बच्चे की तरफ तवज्जो न रही तो हज़रत अबी असयद ने बच्चे को घर वापस भिजवा दिया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारिग हुए और आपने बच्चे के बारे में पूछा तो उन्होंने अर्ज़ की कि मैंने उसे वापस भिजवा दिया है। आपने उसका नाम मंजर रखा। हज़रत समरा बिन जंदब रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर बच्चा अपने अकीके में गिरवी होता है, बस 7वें दिन बच्चे का अकीका किया जाए, उसका नाम रखा जाए और उसकी चंद की जाए, यानी सर मुंडवाया जाए। इस हदीस को इमाम अहमद और इसाब सुनन ने रिवायत किया है। तिरमिज़ी ने इसको सही कहा है। एक रिवायत में युदामा के अल्फाज आए हैं, यहाँ युद्मा के अल्फाज आए हैं, जिसका मायने ये है कि खून बहाया जाए, यानी जानवर ज़िबा किया जाए, और यही अल्फाज ज़्यादा साबित शुदा हैं। ज़ुबैर बिन बकार से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साहबजादे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अकीका किया और उनका नाम इब्राहीम रखा, लेकिन उसकी संद साबित नहीं है और मज़कूरा बला सही हदीस के भी मुखालिफ है। अगर इसे तस्लीम कर लिया जाए तो फिर उनमें तत्बीक ये होगी कि उनका नाम इब्राहीम अकीका के दिन मशहूर हुआ। व इन्नी उईज़ुहा बिका, मैं उसको और उसकी औलाद को शैतान मरदूद के शर से तेरी पनाह में देती हूँ। यानी हज़रत हिना ने अपनी बेटी मरियम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद ईसा अलैहिस्सलाम को शैतान मरदूद के शर से अल्लाह की पनाह में दे दिया तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया। मुसन्निफ़ अब्दुल रज़्ज़ाक़ में हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शैतान हर बच्चे को उसकी पैदाइश के वक्त को चौका लगाता है, जिसकी वजह से वो चीख चीख कर रोने लगता है, मगर मरियम अलैहिस्सलाम और आपके बेटे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इससे महफूज हैं। हज़रत अबू हुरैरा इस हदीस को रिवायत करने के बाद फरमाते हैं, अगर चाहो तो इस आयत को पढ़ लो। इस हदीस को इब्ने जरीर ने भी रिवायत किया है। इसके अलावा बुखारी, मुस्लिम, इब्ने इसहाक और लीस बिन साद ने मुख्तलिफ असनाद से रिवायत किया है। एक रिवायत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि जब शैतान ने उनको कचौका मारना चाहा तो वो कचौका उन्हें न लगा बल्कि पर्दे पर लग गया। सूरह इमरान आयत नंबर 37 फ़तक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलिन हसन व अंबतहा नबतन हसनन व कफ़्फ़लहा ज़करिया कुल्लमा दख़ला अलैहा ज़करिया अल-मिहराब वजदा इंदहा रिज़्क़न क़ाला या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाहा यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। तर्जुमा, फिर कबूल फरमाया उसे उसके रब ने बड़ी ही अच्छी कबूलियत के साथ और परवान चढ़ाया, उसे अच्छा परवान चढ़ाना और निगरान बना दिया। उसका ज़िक्रिया को जब भी जाते मरियम के पास ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम उसकी इबादतगाह में तो मौजूद पाते उसके पास खाने की चीज़ें। एक बार बोले, ऐ मरियम, कहाँ से तुम्हारे लिए आता है ये रिज़्क? मरियम बोली, ये अल्लाह ताला के पास से आता है, बेशक अल्लाह ताला रिज़्क देता है जिसे चाहता है बेहिसाब। तफसीर, फ़तक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलिन हसन, यहाँ अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है कि उसने मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा हिना की नज़र को कबूल फरमा लिया और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की बेहतरीन परवरिश की और उन्हें ज़ाहरी व बातनी हुस्न व जमाल से नवाजा।
नेक और साले बंदों की सोहबत मुहैया की ताकि वो उनसे इल्म, दीन और इखलाक सीख सकें। इसलिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वक़फ़लहा ज़करिया, यानी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को उनका कफ़ील बना दिया। इब्न इसाक फरमाते हैं उसकी वजह यह थी कि हज़रत मरियम यतीम हो गई थी, लेकिन दूसरे मौरख़ीन फरमाते हैं बनी इसराइल में कहत पड़ गया था, जिसकी वजह से हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम को अपनी कफ़ालत में ले लिया था। लेकिन इन दोनों में मुनाफ़ात नहीं है। अल्लाह ताला ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को उनका कफ़ील मुकर्रर किया था ताकि वो उनसे इल्म नाफ़े और अमल सालेह हासिल करें, और दूसरी वजह यह थी कि वो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के खालू भी थे। ये इब्न इसाक और इब्न जरीर का कौल है। बास के नज़दीक उनके बहनोई थे, जैसा कि हदीस इसरा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोनों खालूजाद भाई थे। ये बात इब्न इसाक के कौल पर सादिक आ सकती है, क्योंकि अहले अरब माँ की खाला के लड़के को खालाजाद भाई कहते थे, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हमज़ा की यतीम साहबजादी हज़रत अमारा के बारे में फ़ैसला किया कि उनको उनकी खाला हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब की बीबी की परवरिश में दिया जाए, और आपने फरमाया खाला वालदा के कायम मुकाम होती है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की अज़मत व बुज़ुर्गी और इबादत व करामत का जिक्र किया है। इरशाद फरमाया कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया अल महराबा। हज़रत मुजाहिद, अकरमा, सईद बिन जुबैर, अबू शासा, इब्राहिम नखई, ज़हाक और कतादा वगैरह हम फरमाते हैं कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब मरियम अलैहिस्सलाम के पास उनके इबादत खाने में जाते तो वहाँ सर्दियों में गर्मियों के फल और गर्मियों में सर्दियों के फल मौजूद पाते। बाज़ ने रिज़्क़ का मायनी इल्म बताया है। बाज़ ने फरमाया है कि उनके पास सहाइफ थे जिनमें दीन के अहकाम और इल्मी मसाइल लिखे होते थे, लेकिन पहला कौल ही सही है और वो औलिया किराम की करामात पर दलालत करता है। उसके सबूत में बहुत सी अहादीस भी मौजूद हैं। जब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने आपके पास ये बेमौसमी फल देखे तो एक दिन पूछा, ए मरियम, ये तुम्हारे पास कहाँ से आते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, ये अल्लाह ताला की तरफ से आते हैं। अल्लाह ताला जिसे चाहता है बगैर हिसाब के रिज़्क़ अता फरमाता है। हज़रत जाबर रिवायत करते हैं कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई दिन खाए पिए बगैर गुजार दिए, हत्ता कि जब आपको भूख की वजह से तकलीफ महसूस हुई तो आप अपनी अज़वाज मुतहरात के पास तशरीफ़ ले गए, लेकिन किसी के पास भी खाने की कोई चीज़ मौजूद ना थी। हज़रत सईदा फातिमा के घर तशरीफ़ लाए और फरमाया, बेटी खाने की कोई चीज़ है, मुझे भूख लगी है। उन्होंने अर्ज़ की, मेरी जान आप पर कुर्बान हो, कसम बाखुदा मेरे पास कोई चीज़ नहीं। आप फरमाती हैं कि अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर निकले ही थे कि मेरी एक पड़ोसन ने मुझे 2 रोटियां और गोश्त का एक टुकड़ा भेजा। मैंने उसे एक तश्त में रखा और दिल में ख्याल किया कि बेहतर यही है कि मैं इसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में भेज दूँ। मैंने हसन और हुसैन को बुलाया और कहा कि भाग कर जाओ और अपने नाना जान को ले आओ। आप तशरीफ़ लाए तो मैंने अर्ज़ की कि अल्लाह ताला ने अभी अभी कुछ खाना भेजा है जो मैंने आपके लिए रख दिया है। आपने फरमाया, बेटा लाओ, क्या चीज़ है? फरमाती हैं कि मैंने वो तश्त आपकी खिदमत में पेश कर दिया। जब उसके ऊपर से कपड़ा हटाया तो वो रोटियों और गोश्त से पुर था। मेरी अचानक उस पर नज़र पड़ी। पहले तो मैं बड़ी हैरान हुई, फिर सोचा कि ये अल्लाह ताला की बरकत है। मैंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो फरमाया, ए बेटी, ये कहाँ से आया है? मैंने अर्ज़ की, अब्बा जान, ये अल्लाह ताला की तरफ से आया है। अल्लाह ताला जिसे चाहता है बेहदो हिसाब रिज़्क़ देता है। आपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और फरमाया कि हमदो सना हो उस ज़ाते बारी ताला के लिए जिसने तुम्हें बनी इसराइल की सईदा का मुकाम अता किया। क्योंकि जब उनके पास कोई चीज़ आती और उनसे पूछा जाता कि ये कहाँ से आई तो वो भी यही जवाब देती। फिर आपने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलवाया और ये खाना आपने हज़रत अली, फातिमा, हसन, हुसैन और आपकी तमाम अज़वाज मुतहरात और अहले बैत ने खाया और सैर हो गए। हज़रत फातिमा फरमाती हैं, उसके बावजूद खाना उसी तरह था। मैंने वो खाना अपने पड़ोसियों के यहाँ भेजा। ये सब बरकत अल्लाह ताला की तरफ से थी। सूरह अल इमरान आयत नंबर 38, 39, 40, 41, 38, 39, 40, 41। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बहु क़ाल रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबतन इन्नका समीउद दुआ फनादतहुल मलाइकतु वहुव क़ाइमुन युसल्ली फिल मिहराबि अन्नल्लाहा युबश्शिरुका बियहया मुसद्दिक़म बिकलिमातिन मिनल्लाहि व सय्यिदन व हसूरन व नबिय्यन मिनस्सालिहीन। क़ाल रब्बि अन्ना यकूनु ली गुलामुन व क़द बलगानियल किबारु व इम्रअती आकिरु। क़ाल कज़ालिकल्लाहु यफ़अलु मा यशा। क़ाल रब्बि जल्ली आयाता। क़ाल आयातुका अल्ला तुकल्लिमन नासा सलासता अय्यामिन इल्ला रमज़ा
वस्कुर रब्बका कसीरम वसब्बिह बिलअशी वल इबकार। तर्जुमा, वही दुआ मांगी ज़िक्रिया ने अपने रब से, अर्ज़ की, ऐ मेरे रब, अता फरमा मुझको अपने पास से पाकीज़ा औलाद, बेशक तू ही सुनने वाला है दुआ का। फिर आवाज़ दी उनको फरिश्तों ने जबकि वो खड़े नमाज पढ़ रहे थे अपनी इबादत गाह में कि बेशक अल्लाह ताला खुशखबरी देता है आपको याह्या की, जो तस्दीक करने वाला होगा, अल्लाह ताला की तरफ से एक फरमान की, और सरदार होगा और हमेशा औरतों से बचने वाला होगा और नबी होगा सालिहीन से। ज़िक्रिया कहने लगे, ऐ रब, क्यों कर होगा मेरे यहाँ लड़का, हालांकि आ लिया है मुझे बुढ़ापे ने और मेरी बीवी बांझ है। फरमाया, बात इसी तरह है जैसी तुमने कही, लेकिन अल्लाह करता है जो चाहता है। अर्ज़ की, ऐ मेरे रब, मुकर्रर फरमा दे मेरे लिए कोई निशानी। फरमाया, तेरी निशानी ये है कि ना बात कर सकोगे लोगों से 3 दिन मगर इशारे से, और याद करो अपने परवरदिगार को बहुत, और पाकी बयान करो उसकी शाम और सुबह। तफसीर, हुनालिका दआ ज़करिया रब्बहू। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने देखा कि अल्लाह ताला हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को गैर मौसमी फल अता करता है, तो आपके दिल में औलाद की ख्वाहिश पैदा हुई। अगरचे आप उस वक़्त बहुत बूढ़े हो चुके थे और आपकी ज़ौजा मोहतरमा भी बूढ़ी होने के साथ साथ बांझ हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद आपने अपने रब के हुजूर दस्ते तलब फैला दिया और बड़ी आहिस्तगी से अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ की, है मेरे परवरदिगार, मुझे अपनी जनाब से नेक औलाद अता फरमा, क्योंकि तू ही दुआओं को कबूल करने वाला है। बस अल्लाह ताला ने आपकी इस दुआ को कबूल फरमाया, और जिस वक़्त आप अपनी इबादत गाह में नमाज पढ़ रहे थे, फरिश्ते ने आपको निदा दी कि अल्लाह ताला तुम्हें एक बच्चे की नवीद जान फजा देता है, उसका नाम याह्या रखना। हज़रत कतादा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि उनका नाम याह्या इसलिए रखा गया क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको ईमान के साथ जिंदा रखा। मुसद्दिक़म बिकलिमातिन मिनल्लाह, जो तस्दीक करेगा अल्लाह ताला के एक फरमान की। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास, हसन बसरी, कतादा, अकरमा, मुजाहिद और कई दीगर मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि बिकलिमातिन मिनल्लाह से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुराद हैं। हज़रत अबी बिन अनस फरमाते हैं कि हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम ने ही सबसे पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तस्दीक की थी। हज़रत कतादा फरमाते हैं कि हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के तौर तरीके पर ही गामज़न हुए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि ये दोनों खालाजाद भाई थे, और हज़रत याह्या की वालिदा अक्सर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से फरमाया करती थी कि मुझे अपने शकम में मौजूद बच्चा तेरे शकम में मौजूद बच्चे को सजदा करते हुए महसूस होता है। इसी तरह हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तस्दीक की, और आप हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से उम्र में थोड़े से बड़े थे। व सैयदन हज़रत अबू अल-आलिया, रबी बिन अंस, कतादा, सईद बिन जुबैर वगैरह ने सैयद का मायनी बुर्दबार और हलीम बयान किया है। कतादा फरमाते हैं वो इल्म और इबादत के एतबार से सरदार थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास, सूरी और ज़हाक फरमाते हैं इससे मुराद बुर्दबार और मुत्तकी हैं। सईद बिन मुसैब फरमाते हैं फ़कीह आलिम को सैयद कहा जाता है। अतिया का कौल है कि वह अपने अखलाक आलिया और दीनदारी में सरदार थे। अकरमा फरमाते हैं सैयद वो होता है जिसे गज़ब और गुस्सा मगलूब न कर सके। इब्न ज़ैद ने उसका मायनी शरीफ बताया है। मुजाहिद वगैरह फरमाते हैं सैयद से मुराद वो शख्स है जो अल्लाह ताला के नज़दीक मुअज़्ज़ज़ हो। वह हसूरन हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद, अब्दुल्लाह बिन अब्बास, मुजाहिद, अकरमा और सईद बिन जुबैर वगैरह हम फरमाते हैं हसूर वो होता है जो औरतों के पास ना आए। अबू अल-आलिया और रबी बिन अंस फरमाते हैं कि जिसकी औलाद ना हो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास से एक रिवायत है कि हसूर वो होता है जिसे इंजाल ना हो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं कि रोज़े क़यामत तमाम मखलूक में से हज़रत याह्या ही बगैर किसी गुनाह के अल्लाह ताला से मुलाकात करेंगे। उसके रावी सईद बिन मुसैब हैं। उन्होंने इसको रिवायत करने के बाद यह आयत तिलावत की और ज़मीन से कोई चीज़ उठाई और फरमाया हसूर वो होता है जिसका उज़्व हास उसकी मिसल होता है। हज़रत याह्या बिन सईद कत्तान ने अपनी शहादत की उंगली की तरफ इशारा किया, लेकिन इस रिवायत मरफू से मौकूफ ज़्यादा असह है। यही रिवायत एक दूसरी सनद से भी मरवी है। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर इब्ने आदम क़यामत के दिन गुनाह के साथ मिलेगा। खुदा ताला चाहे तो उसे अजाब दे, चाहे उसे माफ़ फरमा दे, सिवाय हज़रत याह्या बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम के जो सरदार औरतों से परहेज करने वाले और साले नबी थे। फिर आपने एक तिनका पकड़ा और फरमाया उनका उज़्व हास इसकी मिसल है। हज़रत काजी इयाज़ ने अपनी किताब शिफा शरीफ में फरमाया है जान लो कि अल्लाह ताला ने हज़रत याह्या की लफ्ज़ हसूर से सिफ्त बयान की है। बाद मुफस्सिरीन ने इसका मायनी ये बयान किया है कि हसूर वो शख्स होता है जिसका उज़्व खास ना हो, लेकिन मुहक्किकीन ने उसका इनकार किया है क्योंकि ये तो एक ऐब और नुक्स है जो नबी की शान के खिलाफ है, बल्कि उसका मायनी ये है कि आप गुनाहों से मासूम हैं, यानी आप गुनाहों का इर्तिकाब नहीं करते थे, गोया आपको गुनाहों से रोक कर
محفوظ رکھا گیا، اور اس کا یہ معنی بھی بیان کیا گیا ہے کہ حصور وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے آپ کو نفسانی خواہش سے دور رکھے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حصور اسے کہتے ہیں جو عورتوں کی خواہش نہ کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جمع پر عدم قدرت نقص و عیب ہے، بلکہ فضیلت یہ ہے کہ اس قوت کے موجود ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھے۔ یہ یہاں تو مجاہدے سے ہو سکتا ہے جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا، یہاں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف عطا ہوتی ہے جیسا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے۔ اور جو شخص یہ قوت رکھے اور اپنی بیوی کے حقوق پورے کرے لیکن یہ چیز اس کو اس کے رب کی یاد سے غافل نہ کرے تو یہ درجہ انتہائی بلند ہے۔ یہ اعلیٰ مرتبہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا کہ ازواج مطہرات کی کثرت آپ کی یاد الہی میں مائل نہ ہوئی، بلکہ اپنی ازواج کے حقوق ادا کرنے اور ان کو نان و نفقہ مہیا کرنے اور دین کے معاملے میں ان کی رہنمائی کرنے کی وجہ سے آپ کا مقام و مرتبہ مزید بلند ہوا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ حصور کے لفظ سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی مدح بیان کرنا مقصود ہے، فضیلت نہیں، اور یہ فضیلت اسی وقت ظاہر ہوگی جب اس کا معنی یہ کیا جائے کہ وہ نفسانی خواہشات سے پاک تھے اور یہ چیز ان کے شرعی طریقے سے کسی عورت کے ساتھ نکاح کرنے، اس کے حقوق پورے کرنے اور اولاد چاہنے میں مانے نہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا سے بھی حضرت یحییٰ کی نسل پر استدلال کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی تھی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، گویا اس کا معنی یہ ہے، اے اللہ مجھے ایک ایسا بچہ عطا فرما جس کے آگے اولاد اور نسل چلے، واللہ اعلم۔ وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، یہ حضرت یحییٰ کی ولادت کی بشارت کے بعد آپ کی نبوت کی بشارت ہے، اور یہ خوشخبری پہلی نوید سے اعلیٰ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ارشاد فرمایا، اِنَّا رَادُّهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ترجمہ یقیناً ہم لوٹا دیں گے اسے تیری طرف اور ہم بنانے والے ہیں اسے رسولوں میں سے۔ اس بشارت کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کو تعجب اور حیرت ہوئی کہ اس بڑھاپے میں ان کے ہاں اولاد کیسے ہوگی، تو انہوں نے عرض کی، اے میرے پروردگار، میرے ہاں لڑکا کیوں کر پیدا ہوگا، حالانکہ میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ اس فرشتے نے جواب دیا، بات تو ایسی ہی ہے جیسی آپ نے کہی، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کر کے رہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بڑی عظمت کا مالک ہے، کوئی چیز اسے عاجز نہیں کر سکتی۔ پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کیا، میرے رب ہمارے لیے کوئی علامت مقرر فرما دے، یعنی کوئی ایسی نشانی ہو جس سے میں یہ جان سکوں کہ میرے ہاں بچہ پیدا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے بات نہ کر سکو گے سوائے اشارے کے، یعنی تمہاری زبان تو صحیح ہوگی لیکن اس سے بات نہ کر سکو گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس حالت میں ذکر و تسبیح و تحلیل کرنے کا حکم فرمایا، اور فرمایا اپنے پروردگار کو بہت یاد کرو اور صبح و شام اس کی پاکی اور تقدیس بیان کرو۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ سورہ مریم کی تفسیر کے تحت آئے گی۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔